औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि बिक़द्रि हुस्निही व जमालिही व नूरिही व कमालिही। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू पेप टॉक पाकिस्तानी शो। Ladies and gentlemen, by the grace of Allah Almighty, I'm getting a very good feedback of my show, Pep Talk Pakistan. The main objective of my show is to show the positive image of Pakistan to the world. I am conducting interviews of different professionals as they are sharing their success stories to my followers. And I know it is a great source of motivation for everyone. Ladies and gentlemen, this session would be in two medium. One is Urdu and second is English. So the maximum people can reach to us. Ladies and gentlemen, I am super excited today. You know why? Because we're gonna have a wonderful guest today. I am assuring you 100% कि आज का जो हमारा सेशन है, कि जितने भी सेशंस मैंने कंडक्ट किए हैं, this is going to be a wonderful and मैं कहता हूँ कि मेगा हिट सेशन है ये, because today's topic is unique and interesting as well. Joining us today, a great leader, charismatic personality, and an amazing visionary. You know, when I say amazing, I mean it. You know what's special about him? He is known as a retail guru in retail sector. Today, he will be sharing his views on what makes you a great leader. Ladies and gentlemen, I am talking about today's guest, and his name is Farhan Naveed. He is having 20 years working experience in the field of operations, marketing, sales, and retail. He has worked with the different companies like Unilever, Stone Age, Levi's, in Ittihad Textiles. He is currently working with Auto OLX Pakistan as a country head. Ladies and gentlemen, let's welcome Farhan Naveed. Farhan, it's good to have you here. Thank you so much for joining us. Assalamualaikum Hassan, thank you very much. It's a pleasure. It's always a pleasure. Great, wonderful, great. Farhan, thank you. आपका I know that आपका काफी busy schedule है और आपने आज 30 minutes जो है वो हमारे जो लोग हमें देखने व्यूअर्स उनके लिए निकाले हैं. तो I'm pretty sure that कि आज की जो हमारी डिस्कशन है बहुत इंटरेस्टिंग होगी और आज हमें बहुत कुछ सीखने का मौका जो है वो मिलेगा. फरहान, सबसे पहला क्वेश्चन जो कि मेरा है, जो कि मेरे शो का फॉर्मेट है, वो ये है कि हम सक्सेस स्टोरी और स्ट्रगल जो है वो जरूर शेयर करते हैं. तो आपको तो मैं जानता हूँ, कई सालों से आपको फॉलो भी कर रहा हूँ. आई एम योर नंबर 1 फैन, आप कह लें. I'm following you और माशाल्लाह you have worked with different companies और आपकी बड़ी contribution है. तो जब आपने अपने करियर का स्टार्ट किया तो आपको किस किस्म की difficulties का सामना करना पड़ा? Thank you, Hassan. Thank you for great words, and I'm really honored, and I feel like it's a really strong words you've put up. So thank you very much. हसन, टू बी ऑनेस्ट, जब आप बात करते हैं ना कि क्या मसले मसाइल रहे, क्या सामना करना पड़ा, इट्स अ डिफरेंट सिचुएशन व्हेन इट कम्स टू स्टार्ट, बिकॉज स्टार्ट गोज बैक टू अप्रॉक्सिमेटली 20 years बैक. आई स्टार्टेड ऑफ विद यूनिलीवर. अब यूनिलीवर में वो एरास थे आपके 2000 के इनिशियल में, जहां पे आपकी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टेक्नोलॉजी वाज कमिंग इनटू पाकिस्तान. आपके पास उससे पहले एराज में लैपटॉप्स पे और कंप्यूटर्स पे काम नहीं जाता, मैनुअल रजिस्टर्स खातों में काम चलते थे. सो अंडरस्टैंडिंग दैट एरा एंड देन बिल्डिंग अपॉन इट, बिकॉज चैलेंजेस शुरू में आते हैं कि ख्वाहिश सबकी होती है. एनीबडी जिसका नौकरी की ख्वाहिश होती है, नौकरी शुरू करता है, तो हमारा सबसे पहला होता है कि यार वी वांट टू गो टू द टॉप. बट वो टॉप पे जाने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जी हाउ कंसिस्टेंट यू आर in delivering and doing what is supposed to be done at particular that level. हम वो चीज भूल जाते हैं, हम एम करना शुरू हो जाते हैं अपने GSMs को, जनरल सेल्स मैनेजर्स को, नेशनल सेल्स मैनेजर को या कंट्री हेड्स को, बट हम वो ये नहीं देखते कि अच्छा मैं अभी इस पोजीशन में मेरी क्या रिक्वायरमेंट है. बिकॉज जब आप जॉब मैट्रिक्स को देखते हैं या आप परफॉर्मेंस मैट्रिक्स को देखते हैं कि जब आप शुरू करते हैं किसी कंपनी में, तो आपके दिमाग से ज्यादा आपकी ताकत की जरूरत होती है, आपकी मैन फोर्स की जरूरत होती है, बिकॉज यू नीड टू गो आउट एंड लर्न. ऑब्जेक्टिव भी कंपनीज का ये होता है कि अच्छा जाके मेहनत से सीखो. तो उस सीखने में आपको मार्केट में निकलना पड़ता है, आपको गर्मी खानी पड़ती है, सर्दी आपको भुगतनी पड़ती है, आपको लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं, बातें सुनानी पड़ती हैं, स्टोरियां सुननी पड़ती है, स्टोरियां सुनानी पड़ती हैं.
और ये वही स्टोरियां होती है जिंदगी में आपको सबक सिखाती, क्योंकि सड़क से बेहतर सबक कोई इंसान आपको नहीं सिखा सकता, कोई किताब, कोई लेक्चर, कोई चीज नहीं सिखा सकती। जो सड़क आपको सिखाती है, सड़क से मुराद मेरे ऑन फील्ड काम कर, ऑन फील्ड काम करना जो आपको सिखाती है, वो आपको एक कॉन्फिडेंस देती है और आपको एक अंडरस्टैंडिंग देती है कि अच्छा यार इस मार्केट में अगर मैंने चीजें बिल्ड करनी है तो मैं कैसे करूं। सो मैंने वो स्ट्रगल्स की, वो स्ट्रगल करते हुए आपको बुरा भी लगता है, आपको नहीं अच्छा लगता कि यार मैं एमबीए करके आया, मैं इतना पढ़ के आया, मैं फलानी फैमिली से मेरा ताल्लुक है, लोगों की सोच होती है। तो मैं ये काम कैसे कर सकता हूँ कि जी मैं एक सड़क पे जाके अनारकली में एक दुकान वाले के पास बैठ के बोलूं कि हाँ जी आप मेरा यूनिलीवर का सामान खरीद लें, अच्छा नहीं लगता। लेकिन ट्रस्ट मी, ये जो मेहनत होती है उस वक्त बुरी लगती है आपको, लेकिन जिंदगी में आपको बड़ा काम देती है। उसकी छोटी सी मिसाल मैं ऐसे दूंगा आपको कि शुरू के दिनों में जब मैं एक दिन बैठा हुआ था अपने ऑफिस में, तो एक मेरा रूट सेल्स ऑफिसर आया। वो कहता सर मैंने आज ना बड़ी मेहनत की है, आज मैं सुबह निकला था 8 बजे और शाम को 5 बजे वापस आया हूँ और मैंने ना 70 दुकानें विजिट की आज। तो मैंने ऐसे उठा के उसकी शक्ल देखी और मैंने कहा कि अच्छा यार 70 दुकानें विजिट की हैं तुमने? एंड ही गोस यस सर आई हैव डन 70 शॉप्स। मैंने कहा भाई मैंने खुद विजिट की हुई 30 दुकानों से ज्यादा विजिट होती नहीं है आपसे, आप थक जाते, आप कर ही नहीं सकते। तो इन चीजों का फायदा मेरा बताने का मकसद है कि जब आप ये ग्राउंड में चीजें करते हैं ना, तो फिर आपको पता होता है कि अच्छा यार सिस्टम चलना कैसे, चीजें ऑपरेट कैसे होनी है। मुश्किल लगती हैं बट ये जिंदगी में आपको फायदा बहुत देती हैं। फिर आपको कोई तकमा नहीं दे सकता, नोबडी कैन टेक यू फॉर अ फ्री राइड बिकॉज यू डन इट बाय योरसेल्फ। सो मेरी रिक्वेस्ट होती है फॉर पीपल कमिंग इनटू न्यू ऑर्गेनाइजेशंस, न्यू स्ट्रक्चर्स, कि अपने शुरू के साल मेहनत के रखें। मेहनत जितनी करेंगे, मार्केट को समझेंगे, फ्लोर को समझेंगे, आप रिटेल में हैं तो फ्लोर को समझें, आप कोई बाहर काम कर रहे हैं तो सड़क पे जाके मार्केट में सीखें, लोगों से काम सीखें, वो आपको जिंदगी में फायदा देगा। बिकॉज जब आपको अगली पोजीशन के ऊपर जंप करेंगे आप, पीपल आर गोना आस्क यू कि आपका एक्सपीरियंस क्या है। तो जो सड़क से सीखा हुआ, दुकान से सीखा एक्सपीरियंस है, वो जिंदगी में काम आता है। वंडरफुल, ग्रेट फरहान, ग्रेट, वंडरफुल। अच्छा फरहान, जो हमारा आज का जो टॉपिक है व्हाट मेक्स यू अ ग्रेट लीडर, उसकी डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो टॉपिक को लेके वो ये है कि हाउ यू कैन डिफाइन लीडर, कि लीडर होता कौन? यार देखिए, अगर लीडरशिप पे हम सिर्फ बात करने जाएंगे ना, तो वो तो मतलब आधा घंटा क्या, वो तो सालों वाली लंबी डिस्कशन है, क्योंकि दुनिया में बहुत से लीडर्स आए, बहुत से लीडर्स गए और बन रहे। तो लीडरशिप हर तरह की फर्क होती है। फॉर मी लीडरशिप इज समथिंग who is who wins with the team together, who believes in doing miracles in a set frame of mind and set parameters. वो पैरामीटर्स भी आप डिफाइन करते हैं, वो स्ट्रक्चर्स भी आप इन प्लेस लेके आते हैं और टीम को मोटिवेट करके उसको बिल्ड करना इज टू मी लीडरशिप, एंड देन डिलीवरिंग व्हाट इज एक्सपेक्टेड। और लीडरशिप जरूरी नहीं है कि लीडरशिप नीड्स टू बी सिटिंग ऑन द टॉप। Everybody can be a leader in every single phase of employment he and she is. That's what leadership is. कि आपके नीचे जरूरी नहीं कि 100 लोग हों, 50 लोग हों तो आप लीडर हैं। आपके नीचे 2 लोग भी हैं ना, तो उनके लिए आप लीडर ही हैं। अगर आप एक छोटा सा रोल गेट कीपर का कर रहे हैं और आपके नीचे 4 और लड़के हैं जो सिक्योरिटी में है, तो आप उनके लीडर हैं। अगर आप एडमिन के बंदे हैं और आपके नीचे 4 पीएम्स हैं और 6 जेनेटर्स हैं, आप उनके लिए एक लीडर है। अगर आप टेरिटरी मैनेजर हैं या एरिया मैनेजर हैं किसी कंपनी में और नीचे आपके 12 लोग हैं, उनके लिए लीडर है। एंड सो इट गोज अप। सो लीडरशिप इज डेफिनेटली फॉर एवरी सिंगल पोजीशन, एवरी सिंगल लेयर। दैट्स व्हाट लीडरशिप टू मी। ग्रेट, वंडरफुल। अच्छा फरहान, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरा आपसे है वो ये है, हाउ डू यू मॉनिटर द परफॉर्मेंस ऑफ द पीपल दैट यू हैव टू लीड? देखिए हसन, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है, व्हाट आई स्ट्रांगली बिलीव इन, कि performance only comes in once you have an understanding what is the capacity and capability of the individual working with you, beneath you, by you. Only then you can say that कि अच्छा जी इसकी performance levels को ये अभी at level 4 है, I need to take him to level 6, but उसके लिए उसकी पहले level 4 को मापना and understanding that what are the core deficiencies that are missing in delivering what is the vision that this individual needs to deliver. And once you map that up, then you can help that individual in delivering that result which is expected in that. So leadership में I strongly believe कि जब तक अच्छा लीडर के
मुंह बंद होना चाहिए, कान खोले होने चाहिए. Because when people come into you, they're coming with the problems and the solution at the same time. लीडर क्या होता है? लीडर वो होता है जिसको आप सुनना चाहते हैं बट अपनी दिल की भी सुनाना चाहते हैं, अपने मसले मसाइल बताना चाहते हैं. यू वांट टू टॉक योर हार्ट आउट, यू वांट टू टेल देम कि जी ये नहीं होगा. एंड लीडर का काम है वहां पे उनको बैठ के लॉजिकली कन्विंस करना, मैनिपुलेट करना इन अ वेरी पॉजिटिव वे. उसके अंदर जो उसकी डर है, eliminate that fear and move him or her into a zone where that yes, I can do miracles. That's what leadership is. Make them wish, make them dream, and make them achieve. So उसमें capability जानना important है, and then you can build upon that and work on the things that are missing. That is what leadership defines when it comes to helping people in the life. Wonderful, Farhan. Wonderful. अच्छा Farhan, how would you describe your leadership style? Yeah, my leadership style has always been like, I don't work in front of them, I work with them, by them. Right. If we have to do it, my stance has been, yeah, let's do it. We're going to have troubles, we're going to have, highs and lows, but yes, we're going to do it together. And, उसके मैंने एक चीज जो हमेशा सीखी और हमेशा अमल किया है कि जब भी मेरी कोई टीम किसी टास्क में उतरी है तो मैं उसके साथ खड़ा हूँ. ये नहीं कि जी मैं कह रहा हूँ यार आप करके ले आए, आई एम नॉट देयर. आई एम ऑलवेज विद देम, बाय देम, एंड लेट्स डू इट. उसकी वजह ये है कि यार व्हेन यू सी योर लीडर स्टैंडिंग बाय यू, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपका ट्रस्ट लेवल, आपकी मोटिवेशन लेवल इज गोज स्काई रॉकेटिंग. एंड दैट इज व्हाट रियली मैटर्स. एंड दैट्स हाउ, बिकॉज़ लीडरशिप इज नॉट समथिंग you can say कि जी it's been given to me, it's endorsed to me. Leadership is acquired by the trust, by moving with your team and taking them along in that journey. The experience they get is what the experience you intend to give them, and you need to build upon them, and that's how the whole process goes. Great, wonderful. अच्छा Farhan, when I was planning that session, तो हमें कुछ questions जो थे वो भी receive हुए. तो एक question बड़ा interesting था और वो question ये था कि वो कह रहे थे कि मेरे बिहाफ पे आप फरहान से ये जरूर पूछें. क्वेश्चन ये था कि सर जब भी मैं कोई अच्छा काम करता हूँ तो मुझे उसका क्रेडिट नहीं मिलता, और जब मैं बुरा काम करता हूँ तो मुझे मेरा लीडर कहता है कि तुम हो ही ऐसे, तुम निकम्मे हो, तुम दुनिया के फारिग तरीन आदमी हो. तो कहते हैं वो फरहान से पूछे कि ऐसे लीडर को किस तरह से हैंडल किया जाए जो कि क्रेडिट तो खुद नहीं लेते हैं और जब कोई काम गलत होता है तो कहते हैं कि तुमने गलत किया. देखिए यार, ये अगर देखें बहुत जिंदगी में, आई थिंक दैट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन. एंड जिन्होंने भी पूछा, आई एम थैंकफुल समबडी आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन, बिकॉज़ ये हमेशा से मेरी कोशिश रहती है. बिकॉज़ देखें, पीपल डोंट लीव जॉब्स, पीपल लीव पर्सन्स, राइट? तो जिंदगी में कभी आपको ऐसा बॉस मिल जाए, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लीडर, आई एम टॉकिंग अबाउट अ बॉस. बॉस फर्क होता है, लीडर फर्क होता है. अगर आपको ऐसा बॉस मिल जाए जो आपको इस सिचुएशन में ले जाए, so इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि you lose your heart out and stop doing good what you're doing. Because you see, what really matters is कि आप गलती से भी सीखते हैं, आप अच्छा काम करके भी सीखते हैं. Deep down, one needs to know and one needs to have a clear understanding कि यार मैंने जो काम किया, that was justified on the merit and it was what was required for the company to do it. So I did it right. If I'm not even getting the appreciation, deep down कहीं ना कहीं आपको पता है कि जी मैंने सही काम किया और आपका बॉस ने माने, बट कंपनी का पता होता है कि एंड ऑफ द डे ये काम किया किसने सही है. सो ऐसे बॉसेस, ऐसे लोग बड़ी जल्दी एक्सपोज हो जाते हैं. इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम. हम लोगों का डर ही आता है, हम लोग बीच में से डर के घबरा के दौड़ जाते हैं कि यार देखो मेरा बॉस ही ठीक मुझे चलने नहीं दे रहा, मैं चल सकता हूँ. बट कंपनी रिजल्ट्स देख रही होती है, कहीं ना कहीं रिजल्ट्स नजर आ रहे होते हैं. सो आप आज नहीं, कल नहीं, परसों लाइमलाइट में आ ही जाते हैं. जस्ट नीड टू स्टे पेशेंट एंड कीप ऑन डूइंग व्हाट इज राइट. और जब गलती होती है तो गलती, मेरे हिसाब से गलतियां जो होती हैं जिंदगी में, गलतियां जिसने कभी मैं गलती नहीं की उसने जिंदगी में कुछ नहीं सीखा. गलतियां सिखाती हैं, बट अपनी मोटिवेशन को कभी जाया मत होने दें कि यार मुझे डांट पड़ गई तो क्या होगा. ऑलवेज स्ट्राइक अप हार्ड. जब आप किसी बॉल को बाउंस करते हैं तो जमीन पर जब वो टकराता है ना, उतनी स्पीड से ऊपर जाता है. तो गलती करने का मतलब है कि नेक्स्ट टाइम आई एम गोना बी डूइंग समथिंग बेटर जिसके अंदर ये गलती नहीं होगी. तो गलती करना सीखना, डांट पड़ती है, पढ़ने दें, लोग डांटते हैं, बट उससे अपना आपका अपना करियर को खराब मत करें. अपनी सोशल लाइफ, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ को खराब कभी मत करें ये सोच के यार डांट दिया मुझे तो मैं क्या जाऊंगा. कुछ फर्क नहीं पड़ता. आपके अंदर से पता आपको कि आपने सही काम किया, उस पर डटे रहें. वंडरफुल, ग्रेट ग्रेट. अच्छा, जैसे कि आप अभी बता रहे थे कि बॉस में और लीडर में फर्क है, तो हमें लोग देख रहे हैं फरहान, तो वो ये जानना चाहेंगे कि बॉस, मैनेजर्स और लीडर में फर्क क्या है.
देखिए, manager is the one who's just managing a specific task which is given to him by immediate superior. Manager has written book rule जिसमें formulas written है, basic SOPs written है, उसने सिर्फ उसको implement करा रहे हैं. उसकी मैं आपको technical example ऐसे दे सकता हूँ कि एक machine operator है, he is managing that machine, he's supervising that machine, he's not leading that machine. So manager का काम सिर्फ manage करना होता है, structure को properly चलाना होता है. Boss is the one who is, you know, close to being a leader but not a leader. उसके ऊपर authority has been, you know, given into him to be a leader, but unfortunately वो individual leader बन नहीं सका, तो वो boss की formation में चला गया, authority को misuse करना शुरू कर दिया, या authority को I would frame it another way कि misusing, he doesn't understand the beauty of authority. The beauty of his authority is not by saying that कि यार ये काम हो जाए, वो तो हो जाएगा, because you know, since you have the authority to get it done, you can get it done. Beauty ये होती है कि you explain the process and you say कि यार मैं खड़ा देख रहा हूँ, go play a shot and make a 6 out of it. I'm watching. That is leadership is. So अब इसको अगर हम simple words में define करें तो देखिए, nobody is a पैदाइशी leader. Quality सबके अंदर होती है. You know, it is something that has been granted by God as individuals. अगर हम अशरफुल मखलूकात है, we are superior to every other being available on this planet. So that means कि we have capacity and capability of being a leader. अब इस polish कौन करता है? That is the question. And how do you polish it? As your skills, as having more of a listening technique, understanding the complexity of situations, and then helping people. Boss is telling people, leader is helping people in delivering what is required. Boss can tell you कि यार ये आज काम हो जाना चाहिए, शाम 5 बजे मुझे काम चाहिए. That's what boss is. Leader comes in, यार ये 5 बजे तक करना है, तुम्हें क्या क्या support चाहिए करने के लिए? Do you need any physical help? Do you need anything that is related to system? Do you need any cross-functional help to deliver it? That's what leader is. Leader helps you out, boss dictates. That's what the difference is. Great, wonderful, Farhan. Acha Farhan, we want to know that what can you do to motivate a team? यार देखें, you know, एक बड़ा सिंपल सी चीज है कि जब हम सेल्स की ज्यादा बात करते हैं, because you know, सेल्स के जो लोग होते हैं ना, वो सबसे मासूम होते हैं, और सेल्स के लोग जो होते हैं ना, सबसे चालाक और चातर भी होते हैं. उसकी वजह ये है कि जी कभी आपने किसी बच्चे को कहते सुना नहीं होगा कि मैं बड़ा होकर ना सेल्समैन बनूंगा. बच्चे कहते हैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, पायलट बनूंगा, you know, साइंटिस्ट बनूंगा. कभी बच्चा नहीं कहता मैं सेल्समैन बनूंगा. लेकिन जो सेल्समैन बनता है ना, वही जाता है टॉप. आप ग्लोबली देख लें कि मोस्टली आपको नजर आएंगे पीपल फ्रॉम सेल्स, they've understood the, you know, basics of what the operations is and gone to the top positions in life. So sales में अब सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज आती है, जो आपने क्वेश्चन किया कि जी हाउ डू यू मोटिवेट देम. सेल्स में मोटिवेशन जो होती है ना, वो बड़ी मुश्किल होती है, बिकॉज सेल्स का काम बड़ा टफ होता है. अब मसला क्या आता है कि सेल्स में आपको समझाना जो पड़ता है ना, उनको समझाना पड़ता है, यू नीड टू ब्रेक इट डाउन टू पीसेस. फॉर इंस्टेंस, इफ समबडी वाज टू से दैट कि जी हाउ डू यू ईट एन एलिफेंट, सो वो कहेंगे यार ये तो खा ही नहीं सकते, हाथी कैसे खा सकते, इतना बड़ा ह्यूज एनिमल, हाउ कैन यू ईट दैट? बट व्हाट इफ यू स्लाइस इट डाउन टू पीसेस, सो इट्स बिल्कुल स्मॉलर चंक्स. तो आपने जब किसी को मोटिवेट करना है, तो आपने उसकी स्ट्रेंथ को सामने रखना है, एंड देन यू नीड टू बिल्ड अपॉन कि जी जो उसकी वीकनेस है, उसको आपने कहना कि आई एम गोना सपोर्ट यू इन डूइंग दैट, आई वांट टू गेट टू अ नेक्स्ट लेवल, एंड इन दैट दिस इज व्हाट यू कैन डू ग्रेट, दिस इज व्हाट यू कैन बिल्ड अपॉन. जब आप उसको बिल्डिंग में साथ खड़े हो जाते हैं ना, इट्स जस्ट लाइक समबडी इज वेट लिफ्टिंग और आप कहते हैं मैं आपको थोड़ा सा पुश, यू कैन डू अ लिटिल मोर वेट अप. सो उस पुश में जोर नहीं होता, उस पुश में सिर्फ एक थम्स अप होता है, एंड दैट थम्स अप इज कि जी यस यू कैन डू इट. करना उसी बंदे ने है, डिलीवरी उसकी है, बट उसको गाइडेंस इन डूइंग इट द राइट वे, एंड द सेकंड गाइडेंस इज टेलिंग देम यस यू हैव द कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी टू डू इट, एंड आई एम विद यू इन डूइंग इट. God forbid, if you fail, I'll be your backup. That's how, you know, अगले में confidence आता है कि yes, I can do it. Because that's what I've done in life. When I've built teams, I've given them the confidence and trust कि yes, you can do it. जहाँ पे you're going to fail that, it's not that you're not going to fail, but yes, I'll be catching you from behind. I'll be right behind you. I won't let you fall down.
बिगेस्ट थ्रेट क्या होता है यार? आपका डर ये होता है ना कि यार मैंने किया, मैं फेल हो गया, क्या होगा? इफ यू आर स्टैंडिंग राइट बिहाइंड यू, से कि यार फिक्र ना कर, आई एम विद यू, गिरेगा ना मैं संभाल लूंगा, जब कहते हैं यार अब तो मैं करूंगा, देखी जाएगी, यू नो, दैट्स व्हाट माय स्टाइल हैज मोटिवेटेड मी। ग्रेट फरहान, ग्रेट। अच्छा फरहान, जैसे कि हम डिस्कशन करें कि मोटिवेशन जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सेल्स, रिटेल, एफएमसीजी, इन तीनों सेक्टर में इतना क्रिटिसिज्म होता है लीडर्स पे कि जिसका कोई हिसाब नहीं। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। बिल्कुल क्रिटिसिज्म है, बिल्कुल इन द सेंस कि जी कि सेल्स नहीं हो रही, सेल्स वाले नहीं कर रहे, नंबर्स नहीं आ रहे, पैसे जनरेट नहीं हो रहे, रेवेन्यू नहीं आ रहा, सेल्स वाले नहीं कर रहे। सो जब आप बीइंग लीडर, जब आपको कोई क्रिटिसिज्म करता है, तो व्हाट इज योर रिस्पॉन्स ऑन दैट क्रिटिसिज्म? देखिए there are always good days and bad days, so I call it, you know, the bad days are for me tough days, because you know, as the sun goes down the moon comes up, there's always, you know, the sun rising back up. So आपको planning is very important part. हमारे usual failures जो आते हैं is because of the wrong planning. Wrong planning में सबसे important चीज है यार, हम प्लान करते हैं, जब सेल्स की आपने बात की, यूजुअली लोग प्लान करते हैं टॉप डाउन। सी टॉप डाउन में क्या होता है, बाइंस नहीं आते। व्हेन देयर आर नो बाइंस, पीपल आर नॉट गोइंग इनटू इट। आई बिलीव इन बॉटम्स अप। जब बॉटम अप जाते हो तो बॉटम वाले बंदे को यू कैन स्ट्रेच इट अप, यू कैन कन्विंस देम टू डू इट, एंड देन दे ओन दोस नंबर्स। So when you own those numbers, you can deliver it. Yes, बीच में unforeseen situations आती हैं, जैसे for instance Corona hit us this time. Nobody had clue what's going to happen, but people who improvised or said we're going to start working on online and built upon that our platform survived. People who never improvised never survived. So one of the important roles of leadership is that we improvise the situation. You forecast, you assume, you preempt, say where things are heading, and what do I need to do to take a corrective action of forecasting this downfall or forecasting this thing not happening. So that is what a leader is required to do. And उसमें important चीज है, you can take the as much heat as you want, but don't pass heat down. Because जब आप heat को pass down करते हैं तो अगली टीम उतनी robust बर्दाश्त नहीं कर पाती. So it's very important कि आप ये देखें कि यार मुझे कितनी अपने तक रखनी है जो चीजें मेरे पास है, और कितनी मुझे नीचे जाके ट्रांसफर करनी है ताकि अब्सॉर्ब कर सके. The difference between leader and bosses है, बॉस को डांट पड़ती है, बॉस नीचे जाके तबाही लगा देता है, टीम टोटल डीमोटिवेट, कुछ नहीं होता, जो पहले नंबर्स आ रहे हैं उससे भी जाते हैं. And leader goes and said that, "Yaar, explain, we are in trouble. These are the ways I believe we can do it right. So if we have a better suggestion, we can think about it and make it right." हर किसी को फिक्र होती है यार, nobody wants to put up a bad number in, you know, on a sheet end of the day. But what matters is that यार कई टाइम situations जब टफ हो जाती हैं, so people can come up with creative ideas. अब आप देखो कोविड में बहुत लोगों ने बिजनेस को सरवाइव कर बढ़ाया भी है, ऑनलाइन को शिफ्ट किया है, चीजें इंप्रूव की हैं. So you know, it's taking the criticism and holding on to it and devising a strategy and improvising a plan and making it right. That's what I believe is very important. Great, Farhan, great. The next question is that what is the most difficult part of being a leader? You know, the most difficult part of being leader is that leadership is alone. It's, you know, command is always lonely. देखें होता क्या कि when people are looking up to you, and if you know break down at some point, then the whole team is going to break down. So it's always lonely. You know, you have to make up your own strategies. You have to make up your own, keeping in mind the feedback and everything. But you can't really, you know, show down your, you know, downside to the team, because you know the team gets, यार अगर मेरा leader is down तो मेरा क्या बनेगा? You know, just like once they Ronin, the leaders died, they had no leaders, and eventually they committed suicide because they had nothing where to go. So इसलिए leadership is always lonely, but leadership में, you know, you need to think ahead of time. You need to, because अगर आप ahead of time नहीं सोचेंगे, improvise नहीं करेंगे, और आपकी टीम अगर कहीं फंस जाएगी आके, तो they look up to you, and if you don't have a solution to it, so you're going to be in deep trouble. So आपको वक्त के आगे सोचना पड़ता है, आपको चीजों में अपने रखना पड़ता है, अपने दुख अपने तक रख के अपना कंट्रोल करना पड़ता है, and always a smiling face and a conquering face needs to be in front of the team. So पीछे नहीं पता था स्टोरी क्या चल रही है उनको, so that story has to be within you. Great, agreed, wonderful. मैं खुद मोटिवेट हो गया हूँ, wonderful, जबरदस्त, great. अच्छा फरहान, the next question is that कि who is your favorite leader and why?
यार देखें, दुनियावी लीडर्स तो बहुत है और हर कोई एक से बढ़ के एक है, बट टू बी ऑनेस्ट अगर मैं कहूँ जी, मुझे अगर किसी लीडरशिप पे यकीन है ना, तो वो है जी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात। उससे बढ़ के लीडर दुनिया में हो ही नहीं सकता। तिजारत उन्होंने सिखाई, ईमानदारी उन्होंने सिखाई, लोगों के साथ हुस्न सलूकी उन्होंने सिखाया। तो इससे बढ़ के हम लीडर दुनिया में एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं? जिस लीडर की आज से इतने सालों पहले शान में क्या क्या चीजें बयान की गई, उस लीडर से बड़ा लीडर क्या हो सकता है? ये दुनियावी लीडर तो आएंगे जाएंगे, बट चीजों में हर चीज की तरीकत सुन्नत के रास्ते हमें सिखा गए कि कारोबार कैसे करना है, तिजारत कैसे करनी, गुलामों से क्या सलूक करना है, बीवियों से क्या सलूक करना है, भाइयों के साथ कैसे चलना है, दोस्तों के साथ कैसे रहना है, सब सिखा दिया। तो किसी और लीडर की बात करने की जरूरत क्या रहती है इसके अलावा? ग्रेट फरहान, ग्रेट, वंडरफुल। अच्छा फरहान, आपने ये देखा कि अक्सर ऐसे लीडर्स होते हैं कि जब वो अपनी कोई बात करते हैं तो वो टीम को कहते हैं, जब टीम उनको ये आके कहती है कि सर ये ठीक नहीं है, वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, मैं कह रहा हूं तुम्हें ये ठीक है। तो हाउ यू हैंडल द डिसएग्रीमेंट विद द कोवर्कर्स? यार ये हमेशा आता है। इसमें दो तरह के आपके आर्गुमेंट्स आते हैं। वन आर्गुमेंट इज कि जी अगला कहता है कि जी आई बिलीव आई कैन डू इट राइट। दूसरा आर्गुमेंट होता है कि जी मुझे पता होता है कि यार ये इज हेडिंग फॉर अ डिजास्टर, ही वोंट बी एबल टू डू इट। तो हमेशा एज आई सेड अर्लियर, एक लीडर के लिए ना सुनना सबसे इम्पोर्टेंट है। बिकॉज हो सकता है कि मैं अपने किसी स्टांस में, किसी चीज में, किसी ग्राउंड रियलिटी को इग्नोर कर जाऊं। So if somebody is pointing me that out, I need to hear it out and do my own evaluation, saying कि what are the pros and cons of the suggestion of this individual. He could be right. Because देखें, लीडर में एक चीज याद रखिएगा, लीडर कभी भी इस चीज से नहीं घबराएगा कि कोई उसको मशवरा दे रहा है तो उसकी लीडरशिप का क्या होगा। बिकॉज बॉस को मशवरा कोई नहीं दे सकता। तो आपने दूसरी पोजीशन बोली ना कि मैं बोल रहा हूँ यही करना है, वो बॉस होता है। लीडर ऐसे नहीं करता। लीडर बात सुनता है उनकी और लीडर फिर उसको वैलिड करता है कि यार इसके अंदर कितनी % सदाकत है, कितनी % इसके अंदर ऐसी चीज है जो कि मुझे हेल्प कर सकती है इन अचीविंग व्हाट वी सपोज्ड टू डू। दैट इज व्हाट इम्प्रोवाइजेशन इज, कि आपने उसको इम्प्रोवाइज किया और किया। और मैं इस पर हमेशा स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि इट हैज टू बी ओपन डोर पॉलिसी, नॉट कहने के लिए कि आपने सजेशन देना। हो सकता है यार मैं किसी जगह गलत हूँ, आप मुझे बताएं आके, आइदर कन्विंस मी और गेट कन्विंस्ड। बस उसमें जब बैठ के हम लॉजिकल डिस्कशन करेंगे तो या मैं उसको कन्विंस करूंगा या फिर मुझे वो कन्विंस करेगा। एंड दैट हैज टू बी इन अ मैनर व्हिच इज अ वेरी फ्रेंडली मीटिंग। इट्स नेवर गोना गो राइट, सो देयर इज नो डिक्टेशन टू इट। कभी डिक्टेट नहीं करेंगे, आप सिंपली बताएंगे कि जी आपका आर्गुमेंट ये है, इसके काउंटर आर्गुमेंट्स ये हो सकते हैं, जस्ट एज ट्राइंग टू बी डेविल्स एडवोकेट। सो मेरा आर्गुमेंट ये है, आप मुझे बताएं व्हाट डू यू थिंक देयर इज समथिंग रॉन्ग इन दिस प्लान, एंड देन ओनली यू कैन मेक इट not a perfect plan but a good plan that can be able to, that can help you out in achieving results. Great, wonderful. फरहान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। एंड आई नो दैट कि काफी बिजी स्केड्यूल है आपका, लेकिन आपने टाइम निकाला। Really glad and feeling honored about it and really excited and super excited क्योंकि I know you on the personal capacity have contributed a lot in different sectors। और ये 30 मिनट मैं समझता हूँ कि बहुत बहुत जबरदस्त रहे। Getting a very good feedback, मुझे मैसेजेस भी आ रहे हैं व्हाट्सएप पे भी, लिंक्डइन पे भी और यूट्यूब पे भी। एंड थैंक यू वेरी मच फरहान। वेलकम। मेरी एक लास्ट रिक्वेस्ट होगी बिफोर वी पार्ट वे टू द यंग इंडिविजुअल्स, वो ये कि यार जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि नेवर लूज होप, ऑलवेज बिलीव इन सेल्फ एंड ट्रस्ट मी, you all are leaders, you just need to polish yourself right, and once that bit is done, this world has so much to offer and you have so much to achieve in it. Just never lose confidence in that, because जब आप परेशान होते हैं कि जी नौकरी नहीं मिल रही, चीजें नहीं मिल रही, so there's always something better coming up for you. Just keep on striving, never lose hope, because God is the kindest of all, और रिस्क का वादा अल्लाह ताला ने किया, वो देगा, वो जहां से भी देगा आपको बहुत प्यारा देगा। बट कभी अपना रिस्क खराब ना कीजिएगा सिर्फ इस जहन में आके कि जी मैं कुछ ऐसी गलत हरकत कर दूं जिससे मेरा टाइमली हो जाए। टाइमली चीजें जो है जिंदगी में आपको आगे नहीं ले जाती। आगे आपको सही रास्ता, सच्चा रास्ता और आपकी मेहनत, लगन, जज्बा और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस, दैट टेक्स यू अहेड इन लाइफ,
that is, you know, the key thing I would say to all the people, young people listening to it. Great, wonderful, what a message. I mean, Zabardast. Farhan, again, thank you very much. व्यूअर्स, आपका भी शुक्रिया कि आज आपने ये शो देखा, और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि ये जो 30 मिनट से ये जबरदस्त मोटिवेशन थी, क्योंकि इसके अंदर फरहान ने बहुत जबरदस्त तरीके से हमें ये बताया कि लीडर होता कौन है और किस किस्म के लीडरशिप स्टाइल्स होते हैं। अच्छा, बड़ी प्यारी बात उन्होंने कही कि हिम्मत नहीं हारनी, आपने परेशान नहीं होना। अल्लाह ताला इज बेटर प्लान फॉर एवरीवन। यकीन माने, अल्लाह ताला ने आपके लिए बहुत बेहतरीन सोचा होता है, लेकिन आपको उस टाइम अंदाजा नहीं होता। आप सोच रहे होते हैं यार कि टेम्परेरी वक्ती तौर पे समझ आ रही थी यार कि क्या परेशानी है, क्या मसला है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अल्लाह ने आपके लिए बेहतर अच्छा सोचा होता है। आज मुझे इमरान खान साहब की एक बात याद आ गई इस सेशन के बाद। वो कहते हैं कि आपने घबराना नहीं है। वो ठीक कहते हैं कि आपने घबराना नहीं है। इंशाअल्लाह ताला अनकरीब एक नए शो और नए टॉपिक और नए गेस्ट के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद। टेक केयर।